in 11th question of 10.2, I think it is show that the vector is equally inclined on coordinate axis. यही है या that is collinear? Collinear वाला question है? कोलिनियर Collinear. सर कोलिनियर वाला है। तो collinear तो बहुत easy है बच्चों, बताओ मुझे वेक्टर ए क्या है जल्दी से। What is vector A? सर 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. Okay. And vector And B, second vector is minus 4i cap plus 6j cap minus 8k cap. तो कॉलिनियर के फीचर मैंने बड़े आराम से आपसे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। हाँ हाँ लास्ट सेशन में आपसे मैंने डिस्कस किया था, आपको सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी दिखानी है। अब ये लैम्डा कॉमन करके किसी एक वेक्टर में से दिखाना है जो दूसरे वेक्टर से फिर मैच करे। लैम्डा पॉजिटिव और नेगेटिव और डजंट मैटर। लाइक इन वेक्टर बी इफ आई टेक -2 कॉमन, it is same as vector A. So -2 is the proportionality. So vector A and B are proportional. Therefore, vector A and B are collinear. Any other doubt? सर मुझे एक एग्जाम्पल में था। हाँ पूछो बच्चे। सर उस एग्जाम्पल में मतलब एग्जाम्पल 5 है उसमें सर मैं बोलूँ क्वेश्चन? हाँ बोलो बोलो बच्चे। लेट वेक्टर A is equal to I cap plus 2j cap and vector B is equal to 2I cap plus j cap. Okay. Is magnitude A is equal to magnitude of vector B? Okay. Are the vectors A and B equal? No. Why it is equal for what is the first vector? Sir, I cap plus 2j cap. And what is the second vector? 2I cap plus j cap. Both the magnitudes are same, but vectors are not same because their directions are different. Sir, how? बच्चे डायरेक्शन आपकी प्रोपोर्शनल भी नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी इज देयर। पहले ये बताओ। No, sir. Proportionality is not there, so how it's possible to have same direction? For same direction, two vector must have positive proportionality. ये मैंने लास्ट सेशन में बताया था। दो Sir, वेक्टर के बीच में पॉजिटिव प्रोपोर्शनैलिटी का होना जरूरी है इफ यू वांट द वेक्टर्स डायरेक्शन शुड बी सेम। sir, but here the reason is given that but the two vectors are not equal since their corresponding components are distinct. हाँ तो वो दैट्स व्हाई द रीजन ना, corresponding components are distinct and reason is that I am saying कि direction is different, magnitude is same, बात तो एक ही है। What is the meaning of equal vectors? Equal vectors का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। Having same direction Sir, in same magnitude and same same direction. direction. Here you can write this thing also. वो जो लिखा है वो भी करेक्ट है, आप ये भी लिख सकते हो, बल्कि ये तो ज्यादा आपका डिटेल आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। These two vector having same magnitude but different direction because these two vector are not proportional. और for same direction the proportionality positive must be there, but तो ये तो proportional ही नहीं है। पर पॉजिटिव प्रोपोर्शनैलिटी छोड़ो, ये तो प्रोपोर्शनल ही नहीं है। तो यू कैन राइट दिस रीजन द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, सो द वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। Okay, sir. Okay. Shall I move to next question? Next concept lay. yes sir. Okay. Now next concept after question number 11 is direction cosine, and this concept is very important because this same concept we use in 3D also. इनफैक्ट 3D की नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ इसी पे बेस्ड है, डायरेक्शन कोसाइन पे। तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, हर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, बट ये होते क्या है, निकालते कैसे हैं वो तो अभी देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं वो तो डिस्कस करेंगे, बट होते क्या है, व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए व्हेनेवर यू ड्रॉ अ वेक्टर ऑन अ 3D सिस्टम, जब भी आप एक वेक्टर को 3D सिस्टम पे बनाते हो तो
वो तीनों एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस के साथ ना सही कई बार दो के साथ भी बनाएगा, अगर वो प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में, तो दो एक्सिस के साथ वो एंगल की फ्रेमिंग जरूर करेगा। मैं इस बात को पहले रिपीट कर दूं, फिर मैं डायरेक्शन कोसाइन पे आऊंगा। मैंने कहा whenever you place a vector on a 3D system, it always have some angle with the coordinate axis, x axis, y axis and z axis, and that angle when you measure in terms of cos, उस एंगल को जब आप cos की टर्म्स में मेजर करते हो, these are direction cosines, इसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। as per definition of direction cosine, I can say this thing: a vector's cosine relationship with the coordinate axis are known as direction cosine. एक वेक्टर का कोसाइन रिलेशनशिप विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, हाँ मैं रिपीट ही कर रहा हूं, मैंने कहा एक वेक्टर का कोसाइन रिलेशनशिप विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन रिलेशनशिप ऑफ अ वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। तो कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं पहले ये बताइए? How many coordinate axes we have? 3, x axis, y axis and z axis, तीनों के साथ रिलेशन। तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन कोसाइन भी 3 आएंगे, एक x एक्सिस के साथ, एक y एक्सिस के साथ, एक z एक्सिस के साथ। फर्स्ट थिंग, डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय LMN। डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय LMN। 3 होते हैं LMN, ये x के साथ रिलेशनशिप, ये y, ये z, LMN। and how we find these? We have 2 methods. पहला, गिवन, आपको गिवन होना चाहिए, किसके क्या चीज गिवन होनी चाहिए? एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, अल्फा। नेक्स्ट पता होना चाहिए एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वाई एक्सिस, बीटा। एंगल बिटवीन वेक्टर and z axis, gamma. Then you have value of L, which is cos alpha, M is cos beta और N is cos gamma. Very simple. अगर आपको एंगल पता है तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइन तो वही चीज होती है, एंगल को जब आप कॉस की टर्म्स में मेजर करें तो इट इज cos alpha, cos beta, cos gamma। बट समटाइम्स वी डोंट हैव एंगल, वी हैव वेक्टर, तो हम वेक्टर से भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। हम वेक्टर से भी डायरेक्शन कोसाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक L x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, M y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, N z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। So this is the way of calculating direction cosine when vector is given. This is the way of calculating direction cosine when angles are given. एक बात बताओ, ये चीज मुझे लगता है मैं लास्ट क्लास में आपको करवाई थी एक जगह, ये क्या कर रहा हूं मैं? इट इज समथिंग रिलेटेड टू, ऐसा कुछ किया था, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो सर, यूनिट डायरेक्शन में शायद ये, हाँ यही काम तो मैं बोल रहा हूँ, यही काम तो शायद हम यूनिट वेक्टर बनाते वक्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये कंपोनेंट्स ऐसा लग रहा है यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे, इसीलिए ये बिल्कुल ट्रुथ है, एक प्रॉपर्टी निकल के आती है या बोली जाती है, डायरेक्शन कोसाइंस आर आल्सो स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस आर आल्सो नोन एज स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। मेरे बच्चों एक बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप अपना दिमाग लगा मुझे बता सकते हो। इफ आई प्रोवाइड यू अ यूनिट वेक्टर, मैं आपको दे रहा हूं एक यूनिट वेक्टर पूरा, कैन यू टेल मी डायरेक्शन कोसाइंस? अगर टीचर आपको एक यूनिट वेक्टर दे दे तो आप उसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे बताओगे?
फॉर एग्जाम्पल टीचर ने Scalar आपको दिया Scalar components components को check. divided by magnitude. What is the need of dividing magnitude? It is already a unit vector. It is already a unit vector. Why you are dividing magnitude here? सीधा उसके स्केलर कंपोनेंट से उसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे. Am I right? Yes, sir. मैंने आपको मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना नहीं है. मैंने कहा मैं आपको अगर एक यूनिट वेक्टर दूं तो आप मुझे उसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे बताएंगे? तो आपको बोलना चाहिए सर उसके स्केलर कंपोनेंट्स ही उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे. इसमें हमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड तो वैसे ही 1 है. इज इट क्लियर टू एवरीवन जो मैंने बात बोली? Yes, sir. नाउ डायरेक्शन कोसाइंस आर स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर. तो 100% जब एलएमएन स्केलर कंपोनेंट्स है यूनिट वेक्टर के, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अगर मैं एलएमएन का कैलकुलेट करूं तो एलएमएन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 आएगा. सो दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. L square plus m square plus n square always equal to 1. L square plus m square plus n square always equal to 1. One more property I would like to explain regarding direction cosine. पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके नीचे ही नोट करना जो अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा. सर आप एक बार दोबारा रिपीट कर दो प्लीज. L square क्या चीज वाला. बच्चे बोलो. बच्चे L square अभी ये सबको क्लियर है कि ये सबको क्लियर है डायरेक्शन कोसाइन जो है वो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं यूनिट वेक्टर के. सर ये भी रिपीट कर दो एक बार. सर एक बार डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन रिपीट कर दो, मैं लिखना भूल गई. बेसिक हाँ डायरेक्शन कोसाइन मैं पूरे शुरू से एक बार बोल रहा हूँ, जिसको जहां जो पॉइंट रह गया समझना वो दोबारा समझ लें. आई एम रिपीटिंग एंटायर कॉन्सेप्ट. फर्स्ट थिंग, व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस डेफिनेशन से पहले मैंने जो बात बोली थी, मैंने कहा था व्हेनेवर यू ड्रॉ अ प्लेस, व्हेनेवर यू प्लेस अ वेक्टर 3D सिस्टम, it definitely makes some angles with the coordinate axis. ये हमेशा coordinate axis के साथ कोई ना कोई angles बनाएगा. And those angle, when you measure in terms of cos, that become direction cosine. That's why the definition of direction cosine, as per me, not from the book, is the cosine relationship of a vector with the coordinate axis. Cosine relationship of a vector with the coordinate axis is known as direction cosine. इसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं बिकॉज 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो तीनों के साथ रिलेशनशिप अलग अलग होगा विच आर डिनोटेड बाय LMN. हम डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं LMN से. नाउ डायरेक्शन कोसाइन निकालने के 2 मेथड हैं. फर्स्ट मेथड जो आपके सामने बोर्ड पर है, जिसके लिए आपको पता होने चाहिए एंगल्स. वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है, वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल है, वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल है, जो मैंने अल्फा, बीटा और गामा लिया है. तो इफ यू हैव दीज एंगल्स यू कैन फाइंड एलिमेंट बाय डूइंग cos alpha, cos beta and cos gamma. This is your first method, but this method you can apply only when you have angles. But if you don't have angles, if you have vector and teacher is asking for direction cosine, still you can find by second method. मैंने कहा आपके पास एंगल नहीं है बट आपके पास वेक्टर है, तब भी आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो. उसके फॉर्मूला मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखे, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. फिर मैंने एक बात इस पे लिंक करी, मैंने कहा ये जो सेकंड मेथड है, ये LMN निकालने का जो तरीका है, ये कुछ कुछ मुझे कनेक्ट करता है यूनिट वेक्टर से, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट्स को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है. तो ये मुझे यूनिट वेक्टर में भी हम यही करते थे. तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो चीज निकल के आई है LMN, ये कहीं ना कहीं यूनिट वेक्टर के ही कंपोनेंट्स है. That's why at the end I have written a note कि direction cosines are also scalar components of unit vector. हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो स्केलर कंपोनेंट्स भी हैं यूनिट वेक्टर के.
तो जब हमारे डायरेक्शन कोसाइन स्केलर कंपोनेंट्स हैं यूनिट वेक्टर के, तो हम क्यों ना उसका मैग्नीट्यूड 1 लिख लें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ LMN, भाई LMN का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालोगे ना, √L² + M² + N², वो 1 होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो प्रॉपर्टी निकल के आती है, LMN L² + M² + N² = 1। नाउ इज देयर एनी इश्यू इन दिस? सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी पूछो। सर जो ये जैसे हम अल्फा बीटा गामा लेंगे, ये हम वर्टिकल साइड से लेंगे या हॉरिजॉन्टल साइड से? इसकी टेंशन तुझे क्यों लेनी है, क्वेश्चन सीधी भाषा में बताएगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर एंड x एक्सिस इज 30 डिग्री, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड y एक्सिस इज 45 डिग्री, एंगल ओके बिटवीन सर, ठीक वेक्टर है। एंड, तो कैलकुलेट नॉर्मली। ओके ओके। जस्ट सेकंड बच्चे, भावना ये ना बाहर बिस्ती ना है तो सामान देना, चाचा को फोन कर दे, वो आ जाएगा। पेमेंट को अब यहाँ पे हाँ नहीं बुला लिया। वो चाचा कह रहा था मुझे फोन कर दे, पहले पहले देख ले आया है कि नहीं। हाँ जी बच्चे, shall I move to next point? अभी भी still anybody having doubt तो पूछ लीजिए। Shall I move to next point? अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, फील वेरी कंफर्टेबल, कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में, तो जो है थोड़ा बहुत ये थ्योरी हमें ध्यान रखनी है। सर स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक बार बता दो प्लीज। अरे वाह अंश जी, ये तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये तो तूने पूछ के मुझे थोड़ा शॉक कर दिया। बताओ बच्चे, ये एक वेक्टर लिखा है कोई भी क्लास में से, ये स्केलर कंपोनेंट्स क्या है? 2 3 5 2 3 5 अंश जी 2 ओके 3 सर, 5 कोफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप एंड k हाँ कैप। हाँ, न्यूमेरिक वैल्यूज कनेक्टेड टू वेक्टर आर स्केलर कंपोनेंट्स। चलें आगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाए। यस सर। ओके अच्छा एक बात बताओ, ये खुद सोच के बताओगे, आप आराम से सोचना, क्या होगा अगर LMN इक्वल है? इससे क्या आपको मतलब समझ आ रहा है, क्या चीज कनेक्ट कर पा रहे हो अगर सर LMN सबके इक्वल एंगल्स है? इक्वल सर है। इक्वल वेक्टर है वो। सबके एंगल्स इक्वल है, सबके एंगल्स इक्वल हैं, यानी हमारे वेक्टर का जो एंगल x एक्सिस के साथ बन रहा है वही y एक्सिस के साथ बन रहा है, वही z एक्सिस के साथ बन रहा है। एम आई राइट? यस सर। हाँ जी, जो मैंने बोला सबने सुना? यस सर। मैंने कहा अगर LMN इक्वल है तो इसका मतलब ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो आई कैन से दिस थिंग, इफ LMN आर इक्वल देन वेक्टर is equally inclined on coordinate axis. Very important point. Equally inclined का मतलब क्लियर है सबको? यस द मीनिंग ऑफ इक्वली inclined मतलब तीनों एक्सिस के साथ सेम, तीनों एंगल एक्सिस बना के रहे। साथ सेम एंगल बना रहा है। तो ये आपके पेपर में 1 मार्क 2 मार्क में काफी आता है क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहीं नहीं लिखा हुआ डायरेक्शन कोसाइन, सिर्फ ये लिखा हुआ है शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेकिन आप इसमें क्या निकालोगे बोलो? डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइंस कोसाइन, और वो निकालेंगे, तीनों क्या आने चाहिए? तीनों क्या इक्वल आने आनी चाहिए? चाहिए। इक्वल आने चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 आल्सो ऑफ योर एनसीईआरटी, सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का भी है ये। चलिए करें स्टार्टअप क्वेश्चन जल्दी जल्दी। हाँ जी बिगिन करूं? यस सर। यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। वेक्टर बोलना क्या है? सर i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। कौन से मेथड से निकालूं बच्चे, फर्स्ट सेकंड? सेकंड। सेकंड वाला मेथड, L x अपॉन √x² प्लस y² प्लस z², 1 अपॉन 1 प्लस, प्लीज म्यूट कर दो बच्चे, 9, 1 अपॉन √14 m y अपॉन √x² प्लस y² प्लस z² which is 2 upon √14 n z upon x² plus y² plus z² which is 3 upon √14. Can you tell me direction cosines are now?
1 by root 14, 2 2 by by root 14 and 3 and by 3 root by 14. root 14. This is your answer. मैंने कहा ना क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. 13 होमवर्क में 14 देखो राइट नाउ. सर अगर हम एक बार मेंशन कर चुके हैं हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना? हाँ कर सकते, मतलब बार बार आपको मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है. ओके सर. ओके. हो गया सर नोट. चलिए 14th क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं. 14th क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कर लोगे मेरे अकॉर्डिंग तो. अब आप बताना Yes, जरा sir. वेक्टर क्या गिवन है. सर तीनों के I cap. एलिमेंट निकाल लेंगे. आई ठीक है. कैप जे कैप प्लस. के K कैप. cap. तो बस ठीक है, एलिमेंट निकाल लो, तीनों सेम आएंगे. एम आई राइट? यस सर. और एंड में लिख देना एल अंडर इज रूट 3 इक्वल आएगा नीचे सबके. 1/√3. एम भी यही आएगा. एम राइटिंग इन शॉर्ट, एन भी यही आएगा. और एंड में लिख देना एल एम एन 1/√3, 1/√3, 1/√3. सो वेक्टर is equally inclined on coordinate axis. Hence proof. Is it clear? Yes, sir. Next 15th question से पहले I'm taking one concept. Question number 15 से Sir? पहले. हाँ जी बच्चे बोलो. एक वेक्टर को इक्वली इंक्लाइंड होने के लिए उसके कोएफिशिएंट जरूरी होने कोएफिशिएंट सेम जरूरी है ना? हाँ बच्चे, अदरवाइज वो एक्स वाई जेड डिफर होगा तो फिर वो एलएमएन इक्वल नहीं आएगा ना. ओके. ओके. हाँ जी मूव करूं नेक्स्ट पेज पे. यस सर. चलिए एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे. ये ना चैप्टर जो है ऐसे ही है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं. कॉन्सेप्ट में ही टाइम लगता है, क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता है. जो टाइम लगना है वो कॉन्सेप्ट समझ में. क्वेश्चन ऐसे लगता है कि इतनी डिटेल, बट मेरे को आदत है हर चीज के थ्योरी पे थोड़ा सा बच्चे पे माइंड पे बस इम्पैक्ट डाल दो तो वो क्वेश्चंस को तो बड़ी जल्दी डील कर लेता है. तो आपने देखा होगा टुडे आई हैव टेकन हाफ एन आवर बस क्वेश्चन किए दो हमने. तो मेन है कॉन्सेप्ट. ये अब आपको ऐसी चीज है कि याद रहेगी तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए. इनफैक्ट मैं एक सच्चाई बताऊं, अब आप चाहो तो 3D की फर्स्ट एक्सरसाइज भी अटेम्प्ट कर लोगे, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है. यही कॉन्सेप्ट मैं 3D में बताता आपको सारा. तो मेरी मेहनत बच गई. इवन एंटायर एक्सरसाइज मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, पूरी एक्सरसाइज आप 3D की फर्स्ट एनसीईआरटी की यू कैन डू नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. चलिए आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मुझे उठाना है पोजीशन वेक्टर का. अच्छा यार एक पहले एक इंफॉर्मेशन शेयर कर लूं फिर हम आगे डिस्कस करते हैं. वैसे तो एवरी स्कूल इज टेकिंग इनिशिएटिव ऑफ दैट, बट बीइंग अ मैथ्स टीचर मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा. सीबीएसई ने एक मैथ्स कंपटीशन है जो ब्रिक्स के साथ मिलके अरेंज किया है. सीबीएसई ने किया बच्चे. ये बीइंग अ सीबीएसई कोऑर्डिनेटर मैं आपको ये बात पॉइंट बता रहा हूँ. मैथ्स कंपटीशन. Anybody knows what is the full form of BRICS? ये ब्रिक्स है क्या, किसी को पता है? 5 मेजर आपने सुना है कंट्रीज हैं जो एक नरेंद्र? अग्रीमेंट में आई थी. रशिया, इंडिया. हाँ चाइना. ओके. और बांग्लादेश. नो, ब्राजील. ब्राजील. B stands for Brazil, R is Russia, I India, C Canada साउथ और अफ्रीका. S साउथ अफ्रीका. सो दीज आर 5 मेजर कंट्रीज जो एक आपने सुना होगा ब्रिक्स समिट मोदी जी जाते हैं या कई बार ईयर में एक बार होता है. ठीक है ना? यस सर. तो ये वही ब्रिक्स है. अब इसमें ब्रिक्स में क्लास 1 to 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैथ कंपटीशन अरेंज किया गया है विच सीबीएसई इज स्पॉन्सरिंग. तो इसमें नॉट ओनली इंडियन स्टूडेंट, बाहर के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड इट इज सिंपल. बहुत एक सिंपल सा कंपटीशन. क्या है, काइंड ऑफ पेपर है. 60 मिनट्स का पेपर है. 60 मिनट यू हैव टू स्पेयर फ्रॉम डे. एक दिन में 20th नवंबर इज द लास्ट डे. आपको वहां पे वो पेपर अटेम्प्ट करना है. इट इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस काइंड ऑफ थिंग. इट इज रिलेटेड टू बेसिक मैथमेटिक्स एंटायरली. जो आपको साइट है वो मिल जाएगी bricsmath.com. इस साइट पर आपको जाके
अब देखो मैं तो अपने स्कूल की तरफ से इनिशिएटिव ले रहा हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स अपने स्कूल के, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट चार्जेबल। ये कंपटीशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड यू विल हैव अ सर्टिफिकेट व्हिच इज वेरी यूजफुल इन फ्यूचर आल्सो बिकॉज इट इज टोटली स्पॉन्सर्ड बाय सीबीएसई। इसको सीबीएसई के सर्कुलर आया स्कूल्स के पास। तो ये इस कंपटीशन में मैं ये बता रहा था कि लाइक मैं तो अपने स्कूल की तरफ से कर रहा हूँ, तो आई एम रजिस्टरिंग माय स्कूल स्टूडेंट्स। तो आप इसमें एज अ सेल्फ रजिस्टर्ड भी हो सकते हो। व्हाट यू कैन डू, आप वहां पे जाओगे तो आपके पास दो, चाचू को बोलो ना मोहित क्लास ले रहा है। हाँ वो उनको लगेगा वो फ्री है तो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आप सेल्फ रजिस्टर्ड भी कर सकते हो। जब आप साइन अप करोगे ना, तो वो साइन अप में दो ऑप्शन मांगेगा आपसे, एक एज अ टीचर और एक एज अ पेरेंट। तो जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिकॉज आई एम रजिस्टर्ड विद एज अ टीचर, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रजिस्टर्ड कर पा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स खुद नहीं रजिस्टर्ड करते हैं, तो मैं ही उनको अब उनकी लॉग इन आई डी और पासवर्ड बना के भेजता हूँ, जो मेरे एडमिन के थ्रू बन जाती है एज अ टीचर। लेकिन आप इंडिविजुअली भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, रजिस्टर्ड एज अ पेरेंट। आप एज अ पेरेंट मतलब अपने फादर या मदर के उससे एक आईडी बना के देन एज अ स्टूडेंट उस पर अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर को। तो बट अगर आप स्कूल के टीचर को बोलोगे तो इट इज वेल एंड गुड, तो वहां पे सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगा कि यू हैव अटेम्प्टेड फ्रॉम दिस इन दिस स्कूल। तो ये सब चीजें हैं। तो यू शुड गो फॉर, अगर किसी को डिटेल चाहिए तो जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल सेंड यू द डिटेल ऑफ दिस टॉपिक एंड आई विल सेंड यू द सीबीएसई सर्कुलर आल्सो व्हिच इज रिलेटेड टू दैट। तो आप अगर किसी को डिटेल चाहिए, बट इट इज रिलेटेड टू एंटायरली मैथ्स, so that's why I'm sharing with you up to class सर 12 इसका सेंटर पड़ेगा? नहीं सेंटर नहीं पड़ेगा, इट्स ऑनलाइन पेपर बच्चे। मैंने कहा ना, आप रात को 12 बजे बैठ के 1 घंटा निकाल के दे दो पेपर। इट्स अ ऑनलाइन ओके सर। टेस्ट, ऑनलाइन क्विज यू कैन से, बट इट्स वेरी गुड। तो जो मैंने देखा है, तो आप इसको, वन ऑफ माय स्टूडेंट गॉट 70 आउट ऑफ 80। 80 मार्क पेपर इज देयर ऑन 8 डिफरेंट क्राइटेरियाज आर देयर, 10 मार्क्स के 8 यूनिट है। तो इस टाइप से आप इसको दे सकते हो। इफ यू वांट द डिटेल आई विल सेंड यू थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है ना बच्चे? चलिए कॉन्सेप्ट पे वापस सर आते हैं। ग्रुप में ही सेंड कर देना सर। ओके, ग्रुप में सेंड कर देंगे बच्चे। पोजीशन वेक्टर की मैं बात डिस्कस कर रहा था। अब इस पे ना टीचर्स इतना फोकस नहीं करते, बाकी टीचर्स का क्या कहना होता है पहले वो सुनो। ये आपने स्कूल टीचर से भी सुना होगा। बेटा ये एक पॉइंट है 2 3 4, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालना है। तो बेटा 2 के साथ आई कैप लगा दियो, 3 के साथ जे कैप और 4 के साथ के कैप। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। स्टूडेंट आगे से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करता कि सर ये क्या है, ये क्या बता दिया आपने, बस ये समझ आ गया कि पोजीशन वेक्टर बनाते हैं ऐसे। बट जो पॉइंट दे रखा है उसके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगाना है, दैट बिकम पोजीशन वेक्टर। बट वी टॉक अबाउट बेसिक कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। अगर मेरा टीचर मुझे ऐसे एक्सप्लेन करे कि बेटा ये पॉइंट है 2 3 4, पोजीशन वेक्टर 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप हो जाएगा, तो मेरा पहला ही क्रॉस क्वेश्चन ये होगा कि सर कोई भी वेक्टर बनाने के लिए वी मस्ट हैव टू डिफरेंट पोजीशन जिनके बीच में वेक्टर बनता है। अगर आप कह रहे हो ये खाली पॉइंट है, ठीक है, तो अगर ये खाली पॉइंट का वेक्टर है, तो सर आपने बोला था खाली पॉइंट तो एक जीरो वेक्टर होता है। भाई मैंने बोला था ना ये, जब मैं आपको जीरो वेक्टर एक्सप्लेन कर रहा था, एम आई यस राइट? सर। यस सर। और जब इसका नल कोई, वेक्टर। हाँ नल वेक्टर होता है जब इसका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो ये तो फिर नल वेक्टर है। फिर ये 2 आई कैप 3 आई कैप जे 4 के कैप के हो गया, फिर तो ये 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप होना चाहिए। मेरी क्रॉस क्वेश्चनिंग को समझना, तो आप बेसिक्स पे अपने आप फिट बैठ जाओगे। मैंने कहा अगर मेरा टीचर ये बताए इसके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, तो मैं सीधा क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, सर क्यों लगा दें, ये तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, देन इट बिकम अ जीरो वेक्टर। तो आप कैसे फिर 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप बोल रहे हो? फिर तो ये 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और 0 के कैप होना चाहिए। तो टीचर थोड़ा सा फिर हिलेगा, उठेगा, यानी ये बच्चा मानेगा नहीं जब तक हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था हम वेक्टर को फॉर एग्जांपल ये लिखते हैं, फॉर एग्जांपल, और एक वेक्टर मैं ऐसे लिखता हूं,
इन दोनों के लिखने के तरीके में एक डिसएडवांटेज है। क्या है? इसका बेटर है, ये बेटर है। क्या बेटर है इसमें बताओ? सर इसमें पता चल रहा है टर्मिनल पॉइंट एंड इनिशियल टर्मिनल पॉइंट दोनों गिवन है, इनिशियल यहाँ पॉइंट पे है, एक इनिशियल टर्मिनल टर्मिनल नहीं पॉइंट। गिवन। यहाँ पे इनिशियल और टर्मिनल नहीं गिवन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इनिशियल टर्मिनल है नहीं। इसका इनिशियल पॉइंट बाय डिफॉल्ट क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन है। ओरिजिन। ओरिजिन है। इसका बाय डिफॉल्ट इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है। यही बात मैं आपके दिमाग में भरना चाहता हूं रिगार्डिंग पोजीशन वेक्टर। व्हाइल कैलकुलेटिंग पोजीशन वेक्टर, इस पोजीशन का वेक्टर, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये पोजीशन ओरिजिन से जो है उसका वेक्टर बनाओ। ये पोजीशन जो ओरिजिन से है उसका वेक्टर बनाओ। और अब मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं है ये वेक्टर बनाने में। नाउ आई कैन मेक, बिकॉज नाउ आई हैव 2 पॉइंट। बताना जरा, मैं वेक्टर अपने लॉजिक से बनाऊं तो 2i X2 cap plus minus 2i 3j cap cap plus -2 3j 0, cap 2 - 0 i cap, i cap 3 - 0 j cap, 4 - 0 k cap, यानी नाउ द वेक्टर इज 2i। आया वही 2i cap 3j cap 4k cap। What I mean to say, whenever somebody is asking position vector, it is not a position vector, it is basically a vector connected to origin। यानी उस पोजीशन को कहां से कनेक्ट किया गया है? कहां से कनेक्ट किया? Origin। ओरिजिन से। और जब तक दो कनेक्टेड पॉइंट नहीं होंगे वेक्टर बन ही नहीं सकता। अगर एक कनेक्टेड पॉइंट नहीं है, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो फिर तो वो जीरो वेक्टर है, फिर तो वो नल वेक्टर है। सो वी मस्ट हैव कनेक्शन, यानी पोजीशन वेक्टर का कनेक्शन है। इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। आपको याद है मेरी थ्योरी? मैंने कहा था मैं एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चलता हूँ, वाई एक्सिस पे 4 यूनिट चलता हूँ, जेड एक्सिस पे Yes, 5 sir. यूनिट चलता हूँ। ये कहां से चलता हूँ? फ्रॉम विच पोजीशन From आई स्टार्ट? origin फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन। तो बिना इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बिना वेक्टर बन ही नहीं सकता। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मींस वी आर कनेक्टेड विद ओरिजिन, वी आर स्टार्टिंग विद ओरिजिन एंड द पोजीशन इज 2 3 4। इट मींस, इसका मतलब वो है जो मैं बोलता था थ्योरी में सबसे पहले कि मैं एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चला, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट चला, जेड एक्सिस पे 4 यूनिट चला, मुझे जो पोजीशन मिली मुझे उसका वेक्टर बनाना है, और वो आज मेरे वेक्टर सामने है, व्हिच इज 2i cap plus 3j cap plus 4k cap। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब पोजीशन वेक्टर की थ्योरी हमें क्लियर है कि अगर एक पोजीशन का वेक्टर है तो इसका मतलब ये ओरिजिन से कनेक्टेड है। और अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट दे दे और हमसे बोले पोजीशन वेक्टर बनाना है, तो हम समझ गए उसके साथ आई कैप, जे कैप, के कैप आया। बेसिकली हुआ ये जो हमारी स्क्रीन के सामने है। कैन यू टेल मी, इफ आई टेल बी वेक्टर बी इज -1 2 -4, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी? -1 i cap plus 2 j cap -1 plus I cap। -4 k हाँ cap। सर, ये अब आप डायरेक्टली। डायरेक्टली लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं नहीं चाहता आप ये करके दिखाओ। यू कैन राइट डायरेक्टली, बट बेसिक शुड बी क्लियर, मतलब अंदर इनसाइड हिडन पॉइंट शुड बी क्लियर कि ये कनेक्शन तो है और ये ओरिजिन से है। शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ आफ्टर पोजीशन वेक्टर? चलिए आगे। चलिए, अब क्वेश्चंस पे टाइम नहीं लगना। क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मैं शायद 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, ये एक्सरसाइज अभी फिनिश हो जाएगी। बस थोड़ी सी थ्योरी, अभी थ्योरी के पॉइंट रहते हैं थोड़े से। सेक्शन फॉर्मूला के बारे में सुना है सबने लाइफ में? Yes, sir. Straight lines में करा था. स्ट्रेट Yes, लाइन में sir. सेक्शन फॉर्मूला था। और कहां पढ़ा बट है? सर नहीं आता। अरे 10th में था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 11th क्लास में 3D में था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन अ पॉइंट P divides AB in the ratio m1:m2। कैन यू कांट, मतलब आपको ये नहीं आता P कैसे निकालेंगे? X का फॉर्मूला Sir, क्या होता आता है? है. हाँ, तो आता है m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, याद है? यस सर। और y होता है m1 y2 plus y। वही सेक्शन फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है अभी बताता हूं। इस बार ना है तो यही सेक्शन फॉर्मूला, मुझे पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं P के।
मुझे P के पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं, आई कैन फाइंड डायरेक्टली, बट रेशियो जो है ना बच्चों दो टाइप के होते हैं। ये रेशियो का नेचर दो टाइप का हो सकता है, बताओ क्या क्या? A:1. Internal and Externally and externally. इंटरनली एंड एक्सटर्नली। रेशियो दो टाइप का हो सकता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, position vector of P, m1, position vector of A, not A, sorry, B, m1 position vector of B plus m2 position vector of A upon m1 plus m2, position vector of B plus m2 position vector of A upon m1 plus m2. This is position vector of P. In this position vector of P, m1 position vector of B minus externally में position vector of A upon m1 minus m2। बहुत आसान है, फॉर्मूला वही है, बट वही पोजीशन वेक्टर लग गया। अरे पोजीशन वेक्टर इज नॉट अ बिग डील। अगर मैं A के कोऑर्डिनेट 1 2 3 दे रहा हूं तो आपको A का पोजीशन वेक्टर पता है। इफ आई एम गिविंग यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ A 1 2 3, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A? I cap plus 2j cap plus 3k cap. प्लेस कर देना वहां पे। भाई क्वेश्चन हद से हद क्या करेगा, आपको A और B के कोऑर्डिनेट दे देगा, तो आप पोजीशन वेक्टर उनकी बना लेना, नहीं तो वो डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर देता है A और B का, तो और अच्छा है। यू कैन डू इंटरनली एक्सटर्नली, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला वही है जो आपका पहले था। नोट करिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। सर यहाँ पे Next इंटरनली और एक्सटर्नली का मतलब क्या है? अरे अमृत, तुम तो मेरे से 11th में पढ़े हुए हो। सर वो इसका internally, मतलब externally भूल में गया। कुछ नहीं मतलब है। पॉइंट P अंदर होना बैठ है। के अगर लाइन को डिवाइड करेगा तो इंटरनली है, और पॉइंट P बाहर बैठ के भी डिवाइड करता है। रेशियो तो तब भी बना रहा है वो A और B के साथ, कॉलिनियर है A B B, बात आ गई। बट बाहर बैठ के बाहर बैठ के वो डिवाइड कर रहा है। ओके सर। आगे मूव करें। हाँ जी, नोटेड। Yes, sir. मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो खुद ही बना लोगे, मुझे लग रहा है ऐसा। M is the midpoint. M is the midpoint of AB. Can you tell me position vector of M का फॉर्मूला? A vector, A position vector plus B position vector upon 2. Yes, A position vector B position vector का sum upon 2। जैसे x1 plus x2 upon 2 होता है, y1 plus y2 upon 2 होता है, तो इसमें position vector of A plus position vector of B upon 2। This is your midpoint formula। चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से 15 देखो। अब वापस आ जाओ एनसीईआरटी पे। 14 तक किए थे ना, 15 देखिए। Question number 15. Find the position vector of R. Okay. What is position vector of P? बताना। I vector plus 2j vector. No, 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 Ananya. Mistake Sorry. in speaking. I cap plus 2j cap. आगे। minus k cap. And position vector of Q. Minus I minus cap I cap plus J cap plus J K cap. cap plus K cap. We need to find position vector of R. R divides PQ in what ratio? 2:1. First part internally. Yes sir.
So position vector of R, formula M1 position vector of Q minus M2 position vector of P अपॉन प्लस आएगा, इंटरनली है ना। सर प्लस हाँ, M1 प्लस M2, तो वैल्यू प्लेस कर दो। M1 is 2 minus I cap plus J cap plus K cap. M2 is 1 position vector of P I cap plus 2 J cap minus K cap upon 2 plus 1 minus 2 I cap plus 2 J cap plus 2 K cap I cap plus 2 J cap minus K cap upon 3, 1 upon 3 बाहर लिख लो, it is minus I cap plus 4 J cap and plus K cap. This is your answer. Is it clear? हाँ जी, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया क्योंकि कुछ था नहीं इसमें। Can you do externally yourself? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. आगे चलते हैं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, मिड पॉइंट पे बेस्ड है, वो अपने आप कर लेना। 17 क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 99% टीचर शेयर ही नहीं करते, ट्रायंगल लॉ। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि इसका इतना क्वेश्चंस पे इम्पैक्ट नहीं है टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट इतना है जिसका रियलाइज जो बच्चे को होता है वो बोर्ड में होता है, जब उसका एक आधा नंबर ट्रायंगल लॉ की वजह से कट जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि ये गलती मैंने करी है, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुना नहीं और अप्लाई नहीं किया। एनीबडी फ्रॉम द क्लास जिसको ट्रायंगल लॉ पता है? सर एडिशन के लिए यूज किया जाता है ये दो वेक्टर को। सी वेक्टर। हाँ जी बच्चे। सर किसी दो वेक्टर को एडिशन के लिए यूज किया जाता है, और जो वेक्टर होता है, नेट वेक्टर बनता है, वो हाइपोटेन्यूस होती है। ये मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है? सर नहीं, किसी भी एंगल में लगता है, मतलब सर जो अपोजिट साइड होगी ना उन दोनों के बीच की, वो होगी। यही दिक्कत है सर वही ये बोल सर हेड और टेल फर्स्ट वेक्टर का हम हेड ज्वाइन करते हैं सेकंड वेक्टर के हेड से साथ में हेड्स ज्वाइन करते हैं, तो फिर एक जो फाइनल वेक्टर उनका रिजल्टेंट होता है वो थर्ड साइड के बराबर होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, पता ये इसी वजह से मुझे ना मैथ्स टीचर ही बनना था, क्योंकि ऐसे जैसे आप बोल रहे हो ना, ये सब चीजें मैंने भी सुनी थी। और जब मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा था 12th में, मैंने भी ऐसे ही कुछ सुना था, 12th में नहीं तो आगे, तो मैं साथ साथ पता है ये रियलाइज करता था, यार टीचर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में क्यों समझा रहा है, काश टीचर इसको ऐसे समझाए तो ये कितना इजी लगे बच्चों को। तो मेरे जो क्लासमेट्स होते थे मैं उनको एक्सप्लेन करता था ये चीज ऐसे होती है, तो वो कहते थे कि अच्छा ये तो और बेटर है, इजी समझ आया। मैं कोशिश करता हूँ ट्रायंगल लॉ को अपने तरीके से समझाने की। ये जो आपने सब बातें बोली ना, दीज आर लैंग्वेज ऑफ बुक, ये बुक की लैंग्वेज है, ये वो टीचर्स की लैंग्वेज है, दोज हु आर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथ्स, लेकिन ये वो लैंग्वेज नहीं है जिससे बच्चा समझ पाए जल्दी। आप में से 99 क्या 100% बच्चे ये चैप्टर स्कूल में कर चुके हैं। 100% में से ये चैप्टर बच्चे स्कूल में कर चुके हैं। 99% स्टूडेंट भी ट्रायंगल लॉ का मीनिंग नहीं जानते। उसमें से 1% जो जानते हैं, मैं जिनकी वॉइस अभी तक मेरे कानों में आई वो सारे साइंस स्टूडेंट है। सक्षम ने बोला, अमृत ने बोला, और एक शायद साहिल ने बोला। साहिल तूने बोला था? जी सर। हाँ, साइंस है साहिल, कॉमर्स है? साइंस है सर। हाँ, ये सब साइंस वाले बच्चों की लैंग्वेज आवाज आई। और मैं खुद अपने आप को जितना मर्जी वो कर लूं, स्कूल टीचर होते हुए भी मैंने भी अपने स्कूल में ट्रायंगल लॉ समझाए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी इतनी खास। लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? दो चीजें कहता है, मुझे तो बस इतनी पता है। सिर्फ वो चाहता है कि बच्चा ट्रायंगल लॉ में दो चीजों का ध्यान रखे। Whenever three vectors frame a triangle, whenever three vectors frame a triangle, तीन वेक्टर्स ने मिलके ए बी वेक्टर, बी सी ए सी वेक्टर, एक ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल को जब तीन वेक्टर्स ने बनाया
ये चीज हो ही नहीं सकती जो अब मैं बताने जा रहा हूं, हो नहीं सकती. डायरेक्शन कैन नॉट बी लाइक दिस. Direction cannot be like this. Have you noticed AB वेक्टर में कहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, कहां फिनिश हो रहा है? यस सर. सर ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म. और BC में B स्टार्ट हो रहा है, C इनिशियल, B इनिशियल, C टर्मिनल. CA में C इनिशियल और A टर्मिनल, जो एरो से भी पता चल रहा है. This cannot happen. This cannot not at all happen in triangle while three vectors frame. What is compulsory? The compulsory thing is that in triangle, whenever three vectors frame a triangle, two vectors out of three must be co-initial. इन तीन वेक्टर में से दो का को-इनिशियल होना जरूरी है, जो मेरे फर्स्ट एग्जांपल में नहीं हो रहा था. This is allowed. AB vector, BC vector, AC vector. Can you see two vectors are co-initial here? Which one? AB and and AC. AB and AC दोनों having AB and AC. So these two are co-initial. This always be there. अगर ये नहीं होता है तो आप वेक्टर्स में ट्रायंगल वर्ड का यूज ही नहीं कर सकते. You cannot use triangle word if this is not happening. यानी whenever question uses triangle word and if you need to take sides and if you take those sides by taking by not considering this point, शायद आपका आंसर करेक्ट आ जाए, बट मेरे जैसा टीचर मार्क्स जरूर डिडक्ट कर लेगा. मैंने कहा क्वेश्चन ने ट्रायंगल वर्ड का यूज किया और आप तीन साइड्स बना रहे हैं. तीन साइड बनाते वक्त अगर आपने दो साइड्स को को-इनिशियल नहीं रखा, शायद आपका आंसर करेक्ट आ जाए, लेकिन मार्क्स जरूर डिडक्ट होने बनते हैं. बच्चा पूछ रहा है सर आंसर कैसे करेक्ट आ जाएगा अगर मैंने इनिशियल उसका. अरे हो सकता है क्वेश्चन में बात साइड्स के मैग्नीट्यूड की हो रही हो, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, वो AB का हो या AC का या CA का हो. एम आई राइट? भाई आपने मैंने कहा ये तीन वेक्टर बनाओ, ये लो तीन वर्टिसेस, ये तीन वेक्टर बना के इसका मैग्नीट्यूड निकालो, आपका आंसर मैग्नीट्यूड है. एक ने बनाया AB, BC और CA, तीनों ने मैग्नीट्यूड निकाल दिए. एक ने बनाया AB, AC और BC, उसने भी मैग्नीट्यूड सही आ रहे, तो डिस्टेंस पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है. तो बच्चा सोचेगा मेरा भी यही आंसर आ रहा है, मेरे फ्रेंड का भी यही आ रहा है, मार्क्स तो दोनों को पूरे मिलेंगे. लेकिन मेरे अकॉर्डिंग किसको मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, किसके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे? फर्स्ट वाले के, क्योंकि उसने दो वेक्टर्स को को-इनिशियल नहीं रखा, उसने ट्रायंगल लॉ को डिसफॉलो किया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से? यस सर. तो ये अभी पहली स्टेज बताई मैंने ट्रायंगल लॉ की, कि इन ट्रायंगल लॉ देयर आर टू कंडीशन. आई हैव नॉट डिस्कस द सेकंड वन येट. मैंने अभी तक सेकंड को डिस्कस नहीं किया है. मैंने फर्स्ट कंडीशन आपसे शेयर की है कि इन ट्रायंगल लॉ टू साइड्स मस्ट बी को-इनिशियल. हाँ जी, क्लियर इतना? यस सर. चलिए अब इसकी सेकंड कंडीशन ना ट्रायंगल लॉ की I'll discuss in next class with the second exercise also. Don't worry, we will finish second exercise in next class. पूरी हो जाएगी. और ट्रायंगल लॉ का ध्यान रखेंगे हम 17th क्वेश्चन करते वक्त, वो अभी मैंने दिया नहीं आपको. सर सेकंड एक्सरसाइज की थर्ड एक्सरसाइज जो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट है, दैट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. तो कॉन्सेप्ट अभी ट्रायंगल लॉ का बचा, अभी मेन बात तो बची है, वो जो आप डिस्कस कर रहे थे, दो साइड्स का सम थर्ड के इक्वल होता है, वो कैसे होता है वो मैं आपको इतने एग्जांपल से बता दूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं. ठीक है, चलिए. वो सर इसमें पैरेललोग्राम भी एडिशन, पैरेललोग्राम में ना बच्चे बीच में डायगोनल बना दूंगा तो उसमें दो ट्रायंगल लॉ लग जाते हैं. हाँ बस, वो और कुछ नहीं है. ठीक है ना? जी सर. ओके, थैंक यू सर. ओके बच्चे. सर फोर्थ चैप्टर की रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग ऑफ विच टॉपिक? सर इक्वेशन वाला.
बच्चे आज ना अभी मैं लैपटॉप से इस सेक्शन के बाद बैच सी के बाद मैं देख के निकाल के देता हूँ तुझे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, गुड रीजन। ओके। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? कल है ना उसका 3D की क्लास, सॉरी कल बच्चों एलपीपी का सेशन है, 100% है। टाइम सर टाइमिंग टाइमिंग क्या 12 या 1 बजे का रहेगा, बट दैट आई विल इन्फॉर्म आफ्टर 8:30। सर 1 बजे का मत रखना, क्लास है सर। तो रिकॉर्डिंग ले लेना फिर बच्चे। अब तीनों बैचेस में तो टाइम आई कैन नॉट डिस्कस ना। I'll keep the timing as per me. Those who can attend, it's well and good. Those who cannot attend, they can take the recording. सर बोर्ड वाली होगी या बोर्ड वाली डिजिटल बोर्ड इंस्टीट्यूट से लूंगा। ओके सर, ओके थैंक यू सर आप नोटिफिकेशन डाल दोगे ना सर टाइमिंग की? हाँ आज नाइट तक डल जाएगा आफ्टर क्लासेस। सर मैंने आपको 4-5 दिन से कह रहा हूँ सर, मैंने आपको व्हाट्सएप बच्चे कल तेरा सारा काम मैं तुझे अलग से टाइम दूंगा कल। चंद्रप्रीत मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया है तेरा नाम, डोंट वरी, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू हाँ, सो मच सर। ओके, मेरे को लेकिन ओके। फंक्शन में बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं आएगी कल के बाद, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी बेटा। और सर ये वेक्टर चैप्टर कब खत्म हो जाएगा? बस 2 क्लासेस और सर, क्योंकि पेपर में आ रहा है सर, इसलिए कह रहा था। ओके हाँ सर। बच्चे 2 क्लासेस। सर हाँ खुशी बोल बच्चे। सर मेरे ना चैप्टर 6 में कुछ डाउट्स है और चैप्टर नंबर 7 में भी कुछ एग्जाम्पल्स मिसलेनियस से पहले वाले उनमें भी है। चल मैं कोशिश करता हूँ कल इंडिविजुअल टाइम देता हूँ, कुछ बच्चों को दे रहा हूँ तो और कल का टाइम। हाँ, और ना मुझे क्वाड्रेंट्स में भी मैंने दोबारा करी थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो 3D वाला कौन सा नहीं नॉर्मल। अरे वो जो वाले क्वाड्रेंट, मतलब जैसे ये 6π/2 लिख दिया और फिर साइन में वैल्यू निकालनी है तो इसमें। हाँ वो ट्रिग्नोमेट्री 11th वाला पार्ट ना। हाँ वो हाँ मैं शेयर करूंगा तेरे से कल, कोई बात नहीं। ओके रिद्धि क्या कह रहे थे बेटे? रिद्धि डाउट है वेक्टर एक्स्ट्रास में। कब खत्म होएगा? वेडनेसडे को दो पेपर है। डॉट प्रोडक्ट का ऐसा कर, वेडनेसडे पेपर है ना, ये सर एक मंडे वाली क्लास MWF की बैच ए अटेंड कर लेना और अपना बैच भी ट्यूसडे को अटेंड कर लेना, तो हो जाएगा तेरा फिनिश। ओके